माइनस आएगा। अभी क्या आएगा वो बताओ मुझे, प्लस क्या आएगा? सी ये लेंथ कितना है, मिड पॉइंट मतलब ये हाफ लेंथ है ना, दिस इज ऑल्सो हाफ लेंथ, मतलब टोटल ए एंड बी का अगर लेंथ निकाला, लेंथ मतलब क्या, मॉड ए बी, मॉड ए माइनस बी, एंड उसका हाफ ले लिया। सो इफ दिस इज माई मिड पॉइंट में अगर मैंने हाफ लेंथ ऐड किया तो आई शुड गेट द मैक्सिमम लेंथ, एंड मिड पॉइंट में अगर हाफ लेंथ माइनस किया तो मैं यहाँ पे आऊँगा। यू सी दैट? सो मिनिमम के लिए क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, एंड मैक्सिमम में क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी अपॉन टू। इज इट क्लियर एवरीवन? करेक्ट? डू यू सी दैट? मिड पॉइंट तो हमेशा यहीं पे रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे आना है, ये मेरा मैक्सिमम दिख रहा है, अगर यहाँ पे आना है तो क्या करने का, मिड पॉइंट में हाफ लेंथ ऐड करो, एंड अगर यहाँ पे आना है तो क्या, मिड पॉइंट में से हाफ लेंथ सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स ऑल। सो बट हियर इन द केस अपने में ए और बी क्या है, फंक्शन है, सो दैट इज मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी है, दैट इज सेम वही डिफाइन रहेगा, एफ प्लस जी अपॉन टू plus mod of f minus g upon 2, and here also minimum of f comma g, that is f plus g upon 2 minus mod of f minus g upon 2. Do you see दोनों का जो भी राइट हैंड साइड है दैट इज इंटीग्रेबल। सी f इज इंटीग्रेबल, g इज इंटीग्रेबल, दोनों का एडिशन इंटीग्रेबल है, f इंटीग्रेबल, g इज इंटीग्रेबल, माइनस g इंटीग्रेबल, f माइनस g इज इंटीग्रेबल, and by the first one mod of f minus g, that is also integrable, correct? Mod of that is also integrable. So what now, what next? Same, दोनों का addition is integrable. So right hand side integrable, so can I say left hand side is also integrable? Yes. Same here also, right hand side is integrable, so we will say left hand side is also integrable. Implies maximum and minimum is integrable. Correct? Is it clear everyone? Okay, I think we are done. The one thing is remaining to prove mod f is integrable. Mod f integrable वो मैं तुम लोग पे छोड़ता हूँ. Try to find the proof. Try to solve it by yourself. अगर नहीं मिला then I will do that. Try to do it by using this function, composition. So you need to give me of two function such that their composition gives the mod. That is quite simple, you can say. G of x को consider कर लो mod x. That's it. F is your, मैं ही कर देता हूँ, ठीक है. F is integrable and define f is integrable, and let us consider f of x is between small m to capital M, and define this g of x. Define g of x, that is small m to capital M to R, and g of x को मैंने mod x define किया. Now the question is whether this g of x is continuous. g of x mod x है, ये continuous है क्या? Do you see mod का ग्राफ क्या होता है mod x का? Something like this. So ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, बट कंटिन्यूस तो हर जगह है ना. यस. हेलो. यस, कैन यू हियर मी? या. सो डू यू सी दैट एफ मैंने इंटीग्रेबल बोला, एंड एफ को बाउंड दिया स्मॉल एम टू कैपिटल एम के बीच में, अज्यूम किया ये. नेक्स्ट पार्ट क्या बोला मैंने, एक फंक्शन डिफाइन किया जी, दैट इज जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कंसिडर किया. सो बाय दैट थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी एक फंक्शन ऐसा हो, लेट मी शो यू द फंक्शन थ्योरम वंस अगेन. वही थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी का ही यूज़ करके वी कैन डू दैट. सी, एफ इज़ इंटीग्रेबल है,
and we are assuming that function is bounded. See, this is our assumption, and that is true actually in our case. So let g is a, ये जो मेरा g function है that must be continuous, and that is continuous why? Because we are taking mod x. Mod x is continuous everywhere, correct? So that implies g composite f is integrable. So let us see what is our g composite f. What do you see? So let us see g composite f of x क्या रहेगा? That is g of f of x. Do you see that? What is g of x? It is mod x, so it is mod of f of x. That is integrable. So implies mod of f of x is integrable. Correct? Do you see that? Even with the regular definition, जो भी रीमान क्राइटेरिया है उधर से भी कर सकते हो, बट इधर से इजी हो गया ये. Correct? Yes. Is it clear everyone? समझा ये? By using, so अगर तुमको proof लिखना भी होगा तो you just need to write the whole statement of this theorem. By using this only you did it, so you just need to write this statement. And now अभी तुम्हारा वो task तो ख़त्म हुआ. अभी try to see the proof of this. इसका proof है book में. Try to see and try to see how the proof is uh, done. If you understand, then good. We can have that proof later on, maybe in the last, if we have some extra time. Is it clear? So we have now proved everything. Mod f के लिए हम लोगों ने g of x को क्या कंसिडर किया? mod x. f स्क्वायर के हम लोगों ने g of x को क्या कंसिडर किया? x. एंड दिस इज f इंटू जी, तो डायरेक्टली f प्लस जी द होल स्क्वायर से आ गया मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्टली. डू यू सी दैट? सो इज इट क्लियर एवरीवन? Now my question is that, or let me do one more thing, one more small corollary, not corollary, that is a theorem. Let me just write the statement first. Small theorem. Let f from a to b to r be integrable, then mod f is integrable, we already know. And we have to prove this. शायद से ये तुम लोगों ने 12th में देखा होगा, ये इनइक्वालिटी दैट इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी. सी आगे जाके ये बहुत यूज होने वाला है अपने को. This is the inequality. This is what we have to prove. So one part we have already covered, that is mod f is integrable. Why mod f is integrable? You can write that g of x को क्या कंसिडर किया? mod x कंसिडर किया, and that's it. काम हो गया अपना. What next now? अपने को प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है. कैन somebody guess कैसे करें अभी हम लोग? क्या करें? Yes, let us choose one thing. Let us choose epsilon equal to plus minus 1. ठीक है? So अगर मैंने epsilon into इंटीग्रेशन e टू b बोला, ठीक है, f of x dx, और let me just write it like this, that is इंटीग्रेशन e टू b f of x dx का वैल्यू क्या आएगा? mod ऑफ दिस. इसका वैल्यू क्या आएगा? एप्सिलॉन इंटू ई टू बी एफ ऑफ डी एक्स आएगा क्या? करेक्ट. ये डिपेंड करता है इसका वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, इसलिए मैंने जस्ट एप्सिलॉन लगाया. इज इट ओके?
यस, इज इट क्लियर? सो इंटीग्रेशन का वैल्यू इसका मैंने जस्ट फिक्स कर लिया एप्सिलॉन, क्योंकि मेरे को इनइक्वालिटी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इधर से कंसीडर किया एप्सिलॉन को प्लस माइनस होने लिया ये। सो नाउ कैन आई डू दिस, ट्राई टू सी, दिस इज इक्वल टू, कैन आई टेक एप्सिलॉन इनसाइड हियर, कांस्टेंट ही है ए टू बी एप्सिलॉन इनटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कैन आई डू दैट? यस, इज इट ओके? Now let me use one more thing, plus minus f that is less than mod f, correct, that is less than equal to mod f, ये ठीक है क्या? That is f is always less than equal to mod f and minus f is also less than equal to mod f. Then what? प्लस माइनस को मैंने क्या बोला है, एक्चुअली एप्सिलॉन बोला है. सो एप्सिलॉन इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ, कैन आई से दैट? यस, बाय मोनोटोनिसिटी ऑफ इंटीग्रल. मोनोटोनिसिटी क्या बोलते हैं? अगर समथिंग इज लेस देन दिस तो इंटीग्रेशन भी इसका लेस देन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ डी एक्स, ऐसा. डू यू सी दैट? मोनोटोनिसिटी यही था ना, ये टर्म इससे छोटा है तो इसका इंटीग्रेशन इससे इंटीग्रेशन से छोटा है, ऐसा. करेक्ट. फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस एफ दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ, मॉड एफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एवरीवन. देन व्हाट, प्लस माइनस को मैंने तो एप्सिलॉन लिखा था अपने केस में पीछे, सो दैट इज एप्सिलॉन इनटू एफ ऑफ एक्स दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ. देन बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एप्सिलॉन दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाया तो इंटीग्रेशन एप्सिलॉन इनटू एफ ऑफ डी एक्स दैट इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स डी एक्स. डू यू सी दैट? और ये जस्ट पार्ट देखो एंड ट्राई टू सी इट हियर, यही है क्या? करेक्ट. सो कैन आई से इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू बी मॉड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब प्रूफ कंप्लीट हुआ 2 लाइन में ही. इधर क्या लिखने का, बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, प्लस माइनस एफ दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ and that's it, integration will be less than that. Plus minus means what, epsilon, that is epsilon f that is less than equal to mod f. is the proof clear? स्टार्ट कैसे किया मैंने, एप्सिलॉन को प्लस माइनस में ले लिया, फिर मैंने बोला ये इंटीग्रेशन वाले कुछ तो आएगा, इधर प्लस आएगा और माइनस आएगा, एप्सिलॉन इंटू ए टू बी आएगा. सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मैंने एप्सिलॉन को अंदर लिया, देन मोनोटोनिसिटी यूज़ किया तो क्या बोला, ये प्लस माइनस एफ दैट इज एप्सिलॉन एफ इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ. सो इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. डू यू सी दैट? इज इट क्लियर? इज द प्रूफ क्लियर एवरीवन? जस्ट बॉक्स में रखता हूँ ये, यही यूज़ किया हम लोगों ने, जो यहाँ पे लिखा है मैंने छोटे में. इज इट क्लियर एवरीवन? करेक्ट. ओके, सिंपल है. एप्सिलॉन इक्वल टू प्लस माइनस वन लिया एंड दैट्स इट, कुछ किया नहीं, जस्ट मैंने इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बोला, एप्सिलॉन इनटू आएगा, बट एप्सिलॉन तो मेरा कुछ भी हो सकता है, इधर प्लस और माइनस. सो जस्ट आई एम टेकिंग इट इनसाइड, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं उसको. देन यूजिंग मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी का रोल आया इधर एंड वी हैव डन आवर प्रूफ. ठीक है क्या? अभी तुम लोग का मैं ब्रेक तो लिखता हूँ उसमें, लेकिन ब्रेक भी खा जाता हूँ मैं मोस्टली. सो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी 10 मिनट उधर से रिड्यूस करने का, मे बी इफ़ यू वांट, इफ़ यू कैन. ठीक है. इज इट क्लियर एवरीवन? सो मोस्टली वी हैव कवर्ड, अभी एक पार्ट बचा है. और
ओके हाँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ। सी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया इफ एफ इज इंटीग्रेबल then f mod f is integrable. This is what we have proved. Now is the converse true? That is, अगर mod f इंटीग्रेबल है तो f इंटीग्रेबल है क्या? If not, then can you give me an example? Yes. If not, can you give me an example? Hello. Can you hear me? क्वेश्चन समझा क्या सबको? So the question is that if f integrable then mod f is integrable, that is what we know. But if mod f is integrable, then can we say f is integrable? That is something like अगर मैं sequence के term में जाऊँ तो we are saying xn is convergent implies mod xn is convergent. But is the converse true? Same. So पहले तो sequence के term में can you give me a sequence जिसका mod xn convergent है but xn is not convergent? That is obviously oscillatory sequence -1 काम करेगा ना. This is divergent sequence. Do you see that? Why this is divergent? इसके दो करेक्ट, इसके दो सब सीक्वेंस ले लो, एक इवेंट टर्म्स का ले लो दैट गिविंग मी 1 एंड एक ऑड टर्म का ले लो दैट गिविंग मी -1. करेक्ट. सो हम लोग ने पढ़ा है सब सीक्वेंस में अगर कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस है तो उसके हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, बट हियर दे आर कन्वर्जिंग टू डिफरेंट लिमिट. करेक्ट. So this is divergent, but what about mod xn? That is 1. That is convergent. So in this case, do you see that mod xn तो convergent है but xn is not convergent. So you can say mod xn is convergent does not imply xn is convergent. Correct? Yes. Can I use the same technique here also? I think, okay, let me have something, a function. Let me give me a function f of x equal to 1. See, this is -1. This is when x belong to rational number, and this is when x belong to irrational number, something like this. Correct? So what can you say about this function? शायद मैंने इसके बारे में बात किया था. This function is called Dirichlet function. शायद स्टार्टिंग के लेक्चर में अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने बताया भी था कि ये क्यों इंटीग्रेबल नहीं है. Why this is not integrable? And you can just prove it directly, man. Can you prove that? Why this is not integrable? Let us do that. Prove f of x is not integrable. क्या करें बोलो? Yes. What should we do? Same. Let p be a partition. Let p equal to x naught x1 up to xn be partition of चलो ए टू बी लो. हाँ, ए टू बी ही लेता हूँ मोस्टली. फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ फ्रॉम ए टू बी टू आर. करेक्ट. Okay, so this is your partition. Now I want to claim this. Try to see this. Claim in interval this xi to xi plus 1. Your small mi of f
is always going to be -1, and your capital Mi of f is always going to be 1. Can somebody tell me why this is true? I am claiming this. Yes, in this we are using a very important theorem of semester 1. Semester 1 में किया है. Yes, so that is the, अगर मैं ऐसा ग्राफिकली बोलूँ, so in this interval xi to xi plus 1 में, correct, what is that small mi of f means? Something, this is function, what do you mean by small mi? जहाँ पे फंक्शन मिनिमम हो, करेक्ट है, एंड व्हाट इज कैपिटल mi जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम हो, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो कैन यू सी दैट? जस्ट आई विल गिव यू 1 minute. Let me see whether can somebody tell me about this. Small mi of f is -1 and capital Mi of f is 1. Try to think about it. -1 कब आ रहा है? जब इरेशनल है. कैपिटल m कब आ रहा है? जब मतलब 1 कब आ रहा है? जब वो रैशनल है. Try to see. Okay, let me give you a little bit hint. Suppose I am taking this interval xi to xi plus 1, correct? And I am taking all the rational point in this. So हर एक rational point के लिए मेरे को आंसर तो 1 ही आएगा, करेक्ट? सपोज मैं स्मॉल mi ऑफ फाइंड आउट कर रहा हूँ, बट आई एम टेकिंग ऑल द रैशनल पॉइंट. सो सबके लिए आंसर तो 1 ही मिल रहा है मेरे को, हर एक फंक्शन का वैल्यू 1 ही मिल रहा है, बिकॉज रैशनल के लिए 1 है. बट does there exist an irrational number in between them? And if it is, then who tells you that, who guarantees you that there exists irrational number? Yes, can somebody think about it? मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं, सपोज ये इंटरवल है ए टू बी, उसमें अगर मैंने सब रैशनल को लिया तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि उसमें इरेशनल नंबर है ही नहीं. देयर एग्जिस्ट इरेशनल नंबर, बिकॉज रैशनल नंबर पे वैल्यूज तो मेरा 1 है, बट मैं उसमें इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं वो इंटरवल में. हु गारंटीज यू दैट? वेरी नाइस, डेंसिटी थ्योरम, करेक्ट. व्हाट इज डेंसिटी थ्योरम? कैन यू जस्ट टेल मी द स्टेटमेंट? व्हाट इज डेंसिटी थ्योरम? Yeah, between any two rational number there exists irrational number. Same, between two irrational there exists rational. So now do you see that, can I say that small mi of f, मतलब ये इंटरवल में कितना भी वैल्यूज ले लो, इसमें इरेशनल नंबर तो आएगा ही, और इरेशनल पे वैल्यू तो -1 है. मेरे को तो मिनिमम चाहिए था ना, तो मिनिमम तो -1 ही रहेगा. डू यू सी दैट? सेम, कैपिटल एम आई ऑफ एफ क्या रहता है? मैक्सिमम. और मेरे को पता है हर एक इरेशनल पे तो -1 है, बट इसके बीच में रैशनल तो एग्जिस्ट ही करेगा, बिकॉज डेंसिटी थ्योरम बोलता है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर लो उसके बीच में रैशनल, तो इसमें रैशनल नंबर भी आएंगे. रैशनल पे वैल्यू 1 है, इरेशनल पे -1 है, बट रैशनल पे वैल्यू 1 है. सो देयर एग्जिस्ट सम रैशनल नंबर, सो मैक्सिमम विल बी 1 ऑलवेज, बिकॉज वैल्यू तो दो ही आ रहा है, 1 एंड -1. तो मिनिमम हमेशा मेरा -1 आ रहा है, मैक्सिमम 1 आ रहा है. यस. So can you say that LFP that won't be equal to UFP from here? स्मॉल एम आई मिला है, कैपिटल एम आई मिला है, मल्टीप्लाई करके समीशन ले लो, दिस विल भी माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, करेक्ट? इफ दिस टू आर नॉट इक्वल, मतलब LF इज नॉट इक्वल टू UF. दैट मीन्स व्हाट? F is not integrable.
डू यू सी द प्रूफ? समझा क्या है? एक्चुअली मैंने जब डिरिचलेट थ्योरम पढ़ाया था तुम लोग को, तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं दिया था, एक्चुअली यहाँ पे मैंने 0 दिया था, बट दिस नंबर कैन बी एनीथिंग, जस्ट डिफरेंट रहना चाहिए बस, दैट्स इट। इज इट ओके नाउ? समझा है सबको? ये स्मॉल एम आई ऑफ एफ का वैल्यू -1 एंड कैपिटल एम आई 1 क्यों आया? ये समझा ये कैसे आया? सी क्लेम कैसे करने का? स्मॉल एम आई ऑफ मतलब ये इंटरवल में सब लोग हैं, रैशनल्स भी हैं, इरेशनल भी है, बट अगर सपोज कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई इसमें सिर्फ रैशनल नंबर है, मतलब स्मॉल एम आई का वैल्यू 1 ही आएगा, सो दैट इज़ फॉल्स, बिकॉज इफ़ आई टेक एनी टू रैशनल नंबर आई कैन हैव अ इरेशनल, मतलब इसके अंदर दोनों है, रैशनल भी है इरेशनल भी है, तो मेरे को मिनिमम चाहिए था, तो मिनिमम तो इरेशनल पे आता है, तो मिनिमम विल बी -1 ऑल द टाइम। सेम अगर सपोज कोई बोल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ इरेशनल नंबर्स हैं, मतलब वैल्यू सबका -1, then the thing is that density theorem tells us that between any two irrational number there exists a rational number. That means what? उसमें ऐसा एलिमेंट तो रहेंगे ही जो रैशनल है, रैशनल पे वैल्यू 1 है मेरा, so that capital Mi of f is 1, so small mi of f is -1, capital Mi of f is 1। LPF की फॉर्मूले में पुट करो तो ये माइनस सब में आएगा, तो माइनस इंटू बी माइनस से आएगा, ये माइनस इंटू बी माइनस से आएगा, एंड दिस विल बी जस्ट बी माइनस ए। करेक्ट, दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स व्हाट? LF इक्वल टू EF इज नॉट इक्वल, so f is not integrable. So let us come back to our question. Now we have our function f of x equal to 1, and here it is -1 when x belong to rational, when x belong to irrational. What can you say about f square, sorry mod f? mod f क्या आएगा? ये जो ऊपर फंक्शन दिया है इसका mod f क्या आएगा? That is always going to be 1. Is it clear? सी मैंने सीक्वेंस का यूज़ करके तुमको ये बताया, इसमें सीक्वेंस में भी यही किया था। व्हाट कैन यू सी नाउ? दिस mod f कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज कंटिन्यूस है, तो mod f इज इंटीग्रेबल बट f is not integrable. Do you see that everyone? We got our part. यही क्वेश्चन था ना मेरा? This was the question. If f is integrable then mod f is integrable, that is okay. Is the converse true? That means if mod f is integrable, is that f is integrable. So just मैंने sequence का यूज़ किया, sequence में कुछ तो ऐसा पढ़ा था -1/n. So can I define my function like this? So I try to see this function f of x equal to 1 -1. We prove this function is not integrable, and if I take mod f is your 1, that is constant function. Constant function is continuous, so it is integrable. So we prove that mod f is integrable, but f need not be integrable. Here it is not integrable. Do you see that everyone? Is it clear to you? Yes. Is it clear to you? हो कि नहीं तुम लोग? ज़्यादा ही हो गया आज। कुछ भी मतलब ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं किया उन्होंने, जस्ट छोटे छोटे प्रूफ से। Yes. Any doubt? हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रहा है क्या? समझा क्या है? समझा क्या ये? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दिस। सी हम लोग ने ये भी प्रूफ किया, इफ f इज इंटीग्रेबल then f square is integrable. Is the converse true? I'll give you 1 minute. Think about it, tell me the function.
think about it, tell me the function. Did you understand the question, everyone? You need to give me a function whose square is integrable, that but that function is not integrable. तो अभी तक नॉट इंटीग्रेबल का तो मैंने एक ही एग्जांपल तुम लोग को बताया है. सो मे बी यू कैन थिंक. क्वेश्चन समझा क्या तुम लोग? हाँ कुछ बोलते रहो यार, मुझे लगता है नहीं सुन रहे हो. आई विल बी रिपीटिंग ऑल द टाइम, सो बेटर यू शुड जस्ट से यस और नो. Okay, try to think about the function whose square is integrable but that function is not integrable. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. That is quite trivial. Can I use the same function? Correct. Will it work? Let me see. So what is our f of x? That is 1 when x belong to rational, and it is minus 1 when x belong to irrational. Correct. Now what do we want to find? F of x into that is f of x square. That means what? It will be when x belong to rational, to answer 1 था तो 1 का square that is 1 only. When x is irrational, then it is minus 1 का square that is 1. Do you see that? This is a constant function. So that is f square of x, that is 1 when x belong to R. Can I see the same thing here also? F square constant है, that is integrable, and f of x is not integrable. Why f of x is not integrable? You have the proof. Can you do that? This type of question. Yes, everyone. अरे समझा क्या? सर ये सब एक्चुअली हम लोग ने सीक्वेंस में ऐसा देखा था, तो दैट्स व्हाई आई थॉट टू जस्ट प्ले विद दिस थिंग. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या बचा? Can I say if product of two function is integrable, then what can you say about both the function f and g? Whether they both need to be integrable, whether one of them need to be integrable, or we cannot say anything. You understand my question? We know that if f and g are integrable, then f into g is integrable, correct? Now, is the converse true? Or I mean to ask you, question is that if f into g is integrable, does that imply f comma g is integrable, or f integrable g not integrable something f not integrable g integrable, or both not, or cannot say? Cannot say anything. ऑप्शंस हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? This is f integrable, this is f not integrable, and this is g not integrable, here g is integrable. So कौन सा ऑप्शन? This is how MCQ is made. Yes, let me ask it one by one. Okay, first अथर्व, कौन सा ऑप्शन? First of all, do you understand the question, everyone? Should I repeat it? The question is that if product of two function is integrable, then these are the option. Then first one is saying f and g both are integrable. Second, f is integrable, g need not be integrable. Third, f need not be integrable, g is integrable. Then fourth is we cannot say anything.
anything can happen. So let me see ऑप्शंस क्या क्या बोलना चाहोगे. ओके, जिसको लगता है दे कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. आई कैन सी द कमेंट बॉक्स हियर. और लेट मी आस्क. हाँ हाँ, ऐसे ही बता दो. ठीक है, अथर बता दो. ये तेरे से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक? डी. ओके, नेक्स्ट कौन है? मनोज. यस मनोज. अगर नहीं बोलना है किसी को तो दे कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. नीरज. ए. ओके. नेहा. ओमकार. पायल. पायल. शिवांगी. ओके. शुमामा. Which one? Sorry, I didn't hear you. D. Okay. Next, Yukta. C. Okay. So, among all of you, I got three answers which are correct. That is option D. Cannot see. Okay. कौन कौन था? अथर्व and शिवांगी and शुवामा. अदर्स मोस्टली बहुत लोग ने बोला एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल. सो सी थोड़ा सा तो सोचने का ना. अगर सपोज इफ आई टेक माई जी एज एफ ओनली, सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन सेम पहले जैसा हो गया. दैट इज़ अगर जी को मैंने एफ कंसिडर किया तो दिस इज सेइंग मी एफ स्क्वायर इज इंटीग्रेबल. सो मैंने पीछे ही बताया क्या था. एफ स्क्वायर इज इंटीग्रेबल देन व्हाट? एफ नीड नॉट बी इंटीग्रेबल. समझ रहे हैं? सो ऑप्शन वन तो इधर ही से गया. डू यू सी दैट एवरीवन? समझा मैंने क्या बोला? सपोज मैंने एफ एंड जी दो अलग अलग फंक्शन थे ना. सपोज मैंने जी को भी एफ ही कंसिडर किया. दैट इज आई एम टेकिंग एफ स्क्वायर. सो आई एम आस्किंग यू इफ एफ स्क्वायर इज इंटीग्रेबल, डज एफ इज इंटीग्रेबल? दैट इज नॉट. अभी पिछले ही देखा ना हम लोगों ने डिरिचलेट फंक्शन. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अभी इफ एफ इंटू जी इज इंटीग्रेबल, ये बोल रहा है एफ इंटीग्रेबल जी नीड नॉट बी. नो मैन, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इफ यू टेक सी ट्राई टू सी दिस. सपोज एफ को मैंने डिरिचलेट ही लिया, वन एंड माइनस वन लिया. दैट इज एक्स बिलोंग टू रैशनल, एक्स बिलोंग टू इरेशनल. एंड जी को मैंने सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन लिया वन. करेक्ट. व्हेन एक्स बिलोंग टू आर. करेक्ट. इफ आई मल्टीप्लाई देम, सो मेरे को क्या मिलेगा? एफ इंटू जी क्या मिलेगा? यही मिलेगा. यस एवरीवन. f into g is going to be this same thing, 1 and minus 1. That is not integrable. Sorry, मेरे को इंटीग्रेबल चाहिए था ना. Let me take minus 1 here. Sorry, let me take minus 1 here and take this x belong to say q, here q complement. So what can you see? इधर f into g क्या आएगा मेरा? यहाँ पे 1 है रैशनल पे, और यहाँ पे रैशनल पे -1 है, तो मल्टीप्लिकेशन विल बी 1. and when x belong to rational, actually when x belong to real also, because इधर -1 है, इधर. या तो इन बोथ द केस इट विल बी -1. डू यू सी दैट? समझा सबको? मैंने f को क्या लिया? रैशनल पे 1 लिया, इरेशनल पे -1 लिया. g को क्या लिया? रैशनल पे -1 लिया, इरेशनल पे 1 लिया. सो इफ आई मल्टीप्लाई रैशनल का रैशनल से, दैट इज 1 इंटू -1 इज गिविंग मी -1. irrational पे -1 into 1, that is -1 again. So your f into g is the constant function, that is -1. That is integrable, but can you see that
एफ भी इंटीग्रेबल नहीं है, जी भी इंटीग्रेबल नहीं है, दोनों इंटीग्रेबल नहीं है। यस, इज इट क्लियर? यस नीरज, समझा क्या? ठीक है, क्या क्लियर है? सो कौन सा ऑप्शन क्या है ये? सो व्हाट कैन यू से नाउ? अगर मैं सी जी को अगर मैंने ज़ीरो फंक्शन ले लिया, जस्ट let me give you one more example. If I take g equal to 0, zero function, that is constant function 0, so f into g is also zero function, constant function, so f into g is integrable. But in this case you can say g is integrable but f is not integrable, correct? So ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, so we cannot say anything, correct? दिस इज़ हाउ वी शुड आर्ग्यू. सो मोस्टली मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू अ थ्योरम, देन आफ्टर दैट वी विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइक वी यूज्ड टू डू इन आवर लेक्चर. सो मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, एम सी क्यूज़ एंड एवरीथिंग वी विल डू दैट. एंड लेटर ऑन जब अपना प्रैक्टिकल फाइनली स्टार्ट होएगा, मे बी ऑफलाइन, then we will tell you to write, then you just have to write in the lecture. Is it okay? So we will discuss all the theorems, all the problems of that, so that you should know how to solve it. Then later on we will just tell you to write, like the same thing we used to do all the time. Is it okay? Okay, ठीक है. I think I will stop now. हाँ बोलो. If you have any doubt then you can ask. Do you understand? आज का मोस्टली लेक्चर इसी पे था. F इंटीग्रेबल, G इंटीग्रेबल, सो क्या होएगा? सो जस्ट ट्राई टू सी, दिस इज़ वन वे ओनली. जो भी ये मैंने लिखा है, कहाँ गया वो, जिस जितने भी लिखा है, एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, देन दिस इज ट्रू. बट अगर मॉड एफ इज इंटीग्रेबल, आई कैन नॉट से एफ इज इंटीग्रेबल. एफ स्क्वायर इंटीग्रेबल, आई कैन नॉट से एफ इज इंटीग्रेबल. एफ इंटू जी इंटीग्रेबल, आई कैन नॉट से एफ एंड जी इंटीग्रेबल और बोथ इंटीग्रेबल, और वी कैन नॉट से एनीथिंग. सेम गोज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम. दिस ऑल थिंग इज वन वे ओनली, करेक्ट? एंड फॉर द प्रूफ ओनली, फॉर प्रूफ इसके लिए क्या लिया हम लोगों ने, जी ऑफ एक्स को मॉड एक्स लिया. इसके लिए क्या, जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर लिया, करेक्ट? एंड ये तो एफ इंटू जी के लिए एफ प्लस जी, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई किया, मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई किया. डू यू सी दैट एवरीवन? इज इट क्लियर?